हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज सिनेइंफो के एक और सेशन के लिए आपने ज्वाइन किया है। आप आज का सेशन इज वेरी स्पेसिफिक। वी कैन सी वी हैव गौतम किशनचंदानी एंड सलोनी चंद्रा एज पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। आज का डिस्कशन बहुत स्पेसिफिक है। इट इज प्राइमरीली अबाउट एन अपकमिंग वर्कशॉप इन दिल्ली। तो अगर इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चंस है, वी विल हैव अ डिफरेंट डिस्कशन, बट टुडेज डिस्कशन विल primarily be about anything and everything to do with the workshop coming up in Delhi. और इस particular workshop के बारे में बताने के लिए हमने आज का सेशन बिठाया है. So very happy to take up questions about the workshop. कुछ details हम आपको पहले ही बता देंगे. Since we have over 400 registrations, let's take 1 or 2 minutes for people to join in. As you can see, Gautam and Saloni are already as part of our discussion. So you are going to talk to them in person. But while we are doing so, I would like to tell you a little bit about what we are doing. So at सिनेइंफो हम लोग क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आपको एक्सेस मिले, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिले, उनके साथ आपको सीखने का मौका मिले. And in doing that, you are able to build a much more firm foundation for your career. So various times हम लोग एक पर्टिकुलर पड़ाव पे आते हैं, या तो शुरू कर रहे हैं या तो काम कर चुके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. सिस्टम कुछ चेंज हो गया है इंडस्ट्री का. तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमेशा पता होता है कि क्या शिफ्ट हुआ है, क्या चेंज हुआ है, और आपको अपने आप कैसे you have to change your methods, you have to change your process. So इन सब चीजों के लिए we conduct these kind of workshops, we conduct these kind of sessions, we conduct these kind of discussions at सिनेइंफो. Having said that, आज का सेशन टू रिपीट इज फॉर अ वर्कशॉप इन दिल्ली. दिल्ली में एक वर्कशॉप आ रहा है जो गौतम किशनचंदानी जी खुद लेने वाले हैं विद हिज एसोसिएट सलोनी चंद्रा. और उस वर्कशॉप के बारे में आज हम बात करेंगे. आपके जितने भी क्वेश्चंस है कि उस वर्कशॉप में आप क्या सीखेंगे, कितने दिन सीखेंगे, उनके बेसिक्स भी बात की जाएंगी, एज वेल एज अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो आप इस वर्कशॉप के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, कोई यहीं पर आप हमेशा अटक जाते हैं, उसको आप एड्रेस करना चाहते हैं, उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो आज का डिस्कशन उसके बारे में है. आपको आंसर्स दिए जाएंगे, बट एक्चुअली इसका जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हमें क्या काम मिलेगा, ऑडिशन मिलेगा, ये सब जो है आपके जो consistent question, how to look for an audition, how to cast an audition, all of them will be solved as part of the workshop. So it's important कि आप उस workshop को as the final solution देखें. यहाँ पर एक इसको discussion के माध्यम से देखें. Having said that, I will now start my discussion. तो आज के डिस्कशन में हमारा एक छोटा सा पीपीटी है, बट बिफोर दैट लेट मी वेलकम गौतम. हाय गौतम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. And hi, Saloni, thank you so much for joining. Hi, thank you so much for having us. Great. So, Gautam, how excited are you about your workshop in Delhi before I start my PPT? Very excited. Looking forward to it. I've been to Delhi so many times, done casting for so many films in Delhi. No One Killed Jessica was a project. Almost 95% cast was from Delhi, and I had great time, holding auditions over there. बहुत बड़ा talent pool है Delhi का, and the big advantage is most of the actors there are trained in theatre, so एक अच्छी quality आती है for auditions, so which is always exciting. And so going back to Delhi, after casting for Devdi and No One Killed Jessica, now going back there is quite exciting. Super. And Saloni, is this going to be your first opportunity of a workshop in Delhi as well with Gautam sir? Yeah, as a workshop, of course, this is my first time. Please forgive my voice. I kind of have a sore throat. I'm so sorry. I will try my best. We are very, very excited to go to Delhi to do this workshop because, as Sir said, the actors in Delhi, there is so much potential and untapped potential too. There's the theatre culture, which I've heard so much about.
the actors, then the way they describe their Delhi gang and Mandi House and street theater and stage theater, it sounds it sounds very harmonious when they speak about it, and I can't wait to kind of meet them, speak to them, and then kind of try and workshop them into this and transition them into the screen acting circuit. I think it'll be really fun. Super, super. And we are also very excited about this. So before I start talking a little bit more, थोड़ा हिंदी में बात करेगा, मुझे already requests आ रहे हैं जी, बिल्कुल थोड़ा हिंदी में बात करेगा. I think that's a request we keep getting. But having said that, मैं भी कोशिश करूंगी. So गौतम, ये जो आपका वर्कशॉप है, इसमें आप क्या डिस्कवर करने का सोच रहे हैं while you are training, while you are going to be meeting people, आप लोगों से मिलेंगे, आप उनके साथ काम करेंगे, आपके अगर जहन में कुछ एक डिस्कवरी का और एक मतलब अगर आप कुछ एक स्पॉट करना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिकली व्हाट वुड यू बी लुकिंग फॉर इन द आर्टिस्ट इन दिल्ली? आई थिंक जो भी एक्टर्स ट्रेंड है ऑलरेडी in the basics of acting, who have जिन्होंने काम किया है थिएटर में या दूसरे वर्कशॉप किए है, अपने आप पे काफी काम किया है, एक फियर होता है, एक फियर ऑफ ऑडिशन, एक नेगेटिव वैल्यू अटैच होती है ऑडिशंस के लिए कि क्यों जरूरत है, ये काम देख लो, ये मैंने पहले कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ और उस पे नहीं हो सकता. एक डर है ऑडिशंस का कि मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी. ये एक बहुत घबराहट होती है एसोसिएटेड विद ऑडिशन. तो मैं वो घबराहट निकालना चाहता हूँ. आई वांट टू रिमूव दैट फियर ऑफ ऑडिशन फ्रॉम द एक्टर्स. दैट इज द होल पर्पस. अगर आपके दिमाग से वो फियर निकल जाएगा, आपका ऑडिशन बहुत बेटर हो जाएगा. मुझे वो सब फियर्स और इनसिक्योरिटीज निकाल देनी है एंड ऑडिशन को ऐसे अप्रोच करो कि आपको एक काम मिल गया है और आपको उस दिन जाके काम करना है. आपको ऑलरेडी एक काम मिल गया है और वो आप फुलफिल करने जा रहे हो. आई हैव सीन एक्टर्स जो सक्सेसफुल एक्टर्स है, वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप मुझे ऑडिशन कर लो, बस आप ऑडिशन करो और दैट्स ऑल आई वांट. मुझे फर्क नहीं पड़ता मिलेगा कि नहीं, बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी परफॉर्म करने की फॉर द कैमरा. भले वो कमरे में सिर्फ 2 या 3 जन हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो और एक कास्टिंग असिस्टेंट हो, बट जो भी एक्टर ऑडिशन का प्रोसेस एंजॉय करता है, he or she will always get a lot of work. उसे हमेशा काम मिलेगा. और जो फियर से अप्रोच करते हैं कि यार ये हो गया यार, पिछली 3 बार भी मैं यहाँ पे ऑडिशन हुआ मेरा लेकिन हुआ नहीं, यहाँ तो मेरा होता ही नहीं है. ये सब चीजें हैं ना, जो नेगेटिविटी जो एसोसिएटेड होती है ऑडिशन के साथ, वो मुझे निकालना है लोगों कि मेरे वर्कशॉप के बाद ऐसा हो कि लोग बोले बस यार ऑडिशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है. और वो पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच करे उस ऑडिशन, कोई भी ऑडिशन जो उनके लाइफ में आए. ये आई थिंक मेन मुद्दा है इस वर्कशॉप. सुपर. सो बेसिकली व्हेन हम जब इसके बारे में बात करते हैं कि ऑडिशन के लिए आपको तैयार होना है, आपको अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार होना है, एंड आज की डेट पे जितने भी लोग दिल्ली में हैं, वो शायद इसको एक दे मे सी इट एज लिटिल बिट ऑफ अ डिसएडवांटेज की तरह देखते हैं कि हम बॉम्बे में नहीं हैं. तो एक तो वो बहुत बड़ी चीज है कि वी आर मूविंग यू टू दिल्ली सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद देम. उनका जो एक है हमेशा, अगर एक बार मुझसे इन पर्सन मिल लेते तो शायद वो मुझ में वो देख लेते. एंड नॉट जस्ट दैट, वी आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ 4 दिन वो आपके साथ काम कर सकते, आप उनके साथ काम कर सके, ताकि ये जो उनका एक था कि आई वांट टू बी स्पॉटेड, आई वांट टू बी सीन, वो एक सॉल्व हो रहा है. विद दैट ऑल्सो एप्रीहेंशन, जैसे आपने कहा ऑडिशन है या द फटीग ऑफ गिविंग ऑडिशंस और कुछ नहीं हो रहा है, वो फटीग ना आए. हाउ कैन यू गो अबाउट डूइंग इट इन अ रिलैक्स्ड वे एंड इट इज सो. इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में अगर हम कहते हैं कि जो थिएटर आर्टिस्ट है
जिन्होंने थिएटर किया है और अभी तक उन्होंने फिल्म या टीवी में ट्रांजिशन नहीं किया है, क्या उनके लिए ये पर्टिकुलर वर्कशॉप मतलब मायने रखेगा इफ दे आर इंटरेस्टेड टू मूव इन दैट डायरेक्शन? Yeah, of course. Definitely. Definitely. Because Oh, sorry, Saloni, take over. so there's a very big difference between theater performances, theater acting, and screen acting, of course. And a lot of actors, for no wrong reasons, probably for the reasons कि उनको जिस चीज की आदत है एज एन एक्टर, जो प्रोसेस फॉलो करने की आदत है, जो टेक्निक्स फॉलो करने की आदत है, उस वजह से वो स्क्रीन एक्टिंग भी उसी टेक्निक को अपना के करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑडिशंस, बिकॉज अगर ट्रांजिशन करने की कोशिश भी कर रहे हो तो पहले ऑडिशन ही दोगे. बट उस वजह से लॉट ऑफ पीपल जिनको थिएटर की आदत है, वो स्क्रीन एक्टिंग के ऑडिशंस में उतने अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते फॉर रीजंस व्हिच आर प्योरली बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रैक्टिस. तो उनका रियाज अलग होता है एंड स्क्रीन एक्टिंग के लिए रियाज अलग होता है. तो द मेन क्रक्स इज कि जो भी थिएटर एक्टर्स हैं, बिकॉज दिल्ली इज सो थिएटर स्पेसिफिक एंड सो रिच with the theater culture, उस वजह से I think workshop के through it will be a very big advantage that the energy and the technique and the kind of the way in which जो audition दिए जाएंगे for screen acting, वो एक तरीके से tweak किया जाए. तो उस तरीके से दिल्ली एक्टर्स के लिए मेनली बिकॉज दे आई आल्सो गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस सेइंग कि यार आप लोग दिल्ली से नहीं करते हो, मुंबई से ही करते हो, तो दिल्ली में एक्टर होने का क्या फायदा है एवरीथिंग. तो दैट वे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है इस वर्कशॉप में विद रिस्पेक्ट टू ऑडिशंस एंड स्क्रीन एक्टिंग में ट्रांजिशन करना, क्योंकि बहुत ही इतना रॉकेट साइंस नहीं है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट्स जस्ट अ matter of knowing the right tweaking of your techniques, और अपना रियाज कैसे किस तरीके से ट्वीक करना है, किस तरीके से स्क्रीन एक्टिंग के लिए चीजें चेंज करनी है, किस तरीके से सबसे आसान तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना है. आई थिंक दैट इज व्हाट वी मेक एन एफर्ट टू डू, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ थिएटर मत करो, स्क्रीन एक्टिंग ऐसी होती है वैसी होती है. सो instead of talking about it, actually putting it in practice, that is what we are intending to do इस workshop के through. सुपर. एंड इसीलिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है. सो व्हाट आई डू इज आई क्विकली शेयर दैट, ताकि आप लोगों को इस वर्कशॉप का स्ट्रक्चर पता चल जाए. एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये स्ट्रक्चर देख लें. उससे आपके अगर कुछ कब है, कितने बजे है, कौन से दिनों में है, ऑल्दो सारी डिटेल्स हमारे इंस्टाग्राम और हमारे वेबसाइट पे है, पर फिर भी अगर आपको वो क्वेश्चंस हैं तो हम आपको बता देते हैं. I'll just share my screen. So as part of the discussion, just to show you what is it, so we obviously know Gautam Kishanchandani ji ke bare mein. There are quite a few films that are there as part of the library of work which he has done. And in pictures के बारे में मुझे शायद कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, because I'm sure all of you have seen, if not all, many of them. My favorite being Khufia, No One Killed Jessica. Actually, I have 4 out of the 6 are my favorite. So that so Gautam is known. He's one of the most renowned casting directors, and I'm sure आप सबको पता है, इसीलिए आप लोग आज संडे सुबह हमारे साथ बैठे हैं. Having said that, it's been over 2 decades जो ये काम कर रहे हैं, and he does it because he's in love with the whole concept of working with artists. He's in love with the film industry. He's in love with working with great quality scripts, and that makes him actually one of the best person to spot great quality talent. And Saloni with him has been working for almost 7-8 years or maybe longer, and it has also made them one of the most proficient team to identify great quality talent for some very amazing content out there. So आज का जो हमारा डिस्कशन है, जो गौतम सर और सलोनी जी हमारे साथ बात कर रहे हैं, वो एक लाइव वर्कशॉप के बारे में बात की जा रही है, जो 4 दिनों के लिए 19 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर दिल्ली में होने वाला है.
और दिल्ली में वो 4 दिनों के लिए, मतलब फ्राइडे से लेके मंडे तक होने वाला है। मोस्ट डेज इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 5 to 9 PM। सिर्फ रविवार को हम लोग सुबह 10 से 2 बजे करने वाले हैं। टाइमिंग इसलिए बताई गई हैं क्योंकि इट्स अ टाइम व्हेन पीपल मे एक्चुअली हैव प्लान्स। सो आपको बताया जा रहा है कि ये टाइमिंग पे होगा। इसके आगे पीछे अगर आपको अपना कुछ अरेंज करना आप कर सकते हैं। एज आई सेड, द लोकेशन इज दिल्ली, वसंत कुंज, and there are only 20 seats. In case it goes higher, we will see how to accommodate, but we'll try to cap it at 20 seats. That is why we are announcing it, क्योंकि जैसे ही 20 हो जाएगा हम इसकी एडमिशन बंद कर देंगे। So we will not wait till the 19th. जैसे इसकी एडमिशन, जैसे अभी ऑलरेडी वी हैव रीच्ड अ सर्टेन अमाउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जैसे ही वो उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएंगे, ये एडमिशन बंद कर दी जाएगी। हैविंग सेड दैट, सारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा सिनिन्फो की तरफ, जो गौतम सर से साइन किया जाएगा। आप इसको अपने वर्क लिंक में भी डाल सकते हैं। और एक परफॉर्मेंस शोरील जिसे कहते हैं, वो भी दिया जाएगा। परफॉर्मेंस शोरील इज वेरी सिंपल। इट इज बेसिकली आपका जो परफॉर्मेंस आपने किया है उसका एक शोरील बनाया जाएगा और उस शोरील को हम प्रेजेंट करेंगे। आप वो शोरील की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिलेगी। Now the program highlights, I'm just taking you through the points, but हम इसके बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं। So we will talk about how characters के बीच में relationship कैसे होता है, स्क्रिप्ट की एनालिसिस, कैरेक्टर की एनालिसिस, फिर एक रोल के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, डायरेक्टर का विजन, कास्टिंग डायरेक्टर का विजन, ऑडिशन की तैयारियां, इम्प्रोवाइजेशन टेक्निक किसे कहा जाता है, सीन वर्क, ऑडिशन, ये सारे शब्द आपने शायद सुने हो या आपके साथ दूसरे वर्कशॉप्स पे भी बात की गई होगी। इन्हीं के बारे में इन मच मोर डिटेल इन 4 दिनों में काम किया जाएगा। सो एंड वी विल टॉक अबाउट मेनी ऑफ दिस टुडे, एंड दैट इज व्हाई we have Stiloni and Gautam as part of today's workshop. Having said that, the last date, as I said, for registration is 10th, or if the batches get full. I'll stop my presentation now. Very quickly, मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि many of you have questions for related to the workshop and everything. So इसलिए this should quickly tell you what is it that this workshop is about. Now, moving further with the questions. तो गौतम, अगर आप हमें बता सके that इस वर्कशॉप में जब हम कहते हैं कि 4 दिनों में आप 4 मेन पॉइंट्स अगर बता सके जो हम उनके ऊपर फोकस करेंगे, एंड सलोनी यू कैन ऐड आल्सो उसके बाद विद गौतम सर। I think main is how to approach an audition को कैसे अप्रोच करना चाहिए। कैरेक्टर समझना भी बहुत जरूरी है। एक जो कैरेक्टर आपको मिला है वो उसको समझना, उसकी दुनिया को, उसके सराउंडिंग्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक मतलब अप्रोच कैसे करना है कैरेक्टर को, और 4 पॉइंट जैसे कुछ आई एम नॉट श्योर कि क्या मतलब। इट इज हाउ यू गो विद इट, हाउ टू क्रैक एन ऑडिशन एट बेस्ट, कि आप कैसे एक अच्छा ऑडिशन दे बेसिकली। I think the main crux जो होता है which a lot of actors struggle with is कि जो मैंने खुद भी देखा है, the kind of suppose there's an actor who's gotten a किसी को कॉल आया है एक ऑडिशन के लिए किसी भी कास्टिंग कंपनी से, उनको मेनली एक स्क्रिप्ट मिलती है, उनको एक ब्रीफ मिलता है which is actually very brief. उनको उतना डिटेल में चीजें बताई नहीं जाती हैं, या फिर बताई भी जाती हैं तो समझना, और हर किसी की समझ बहुत सब्जेक्टिव होती है, और उस पर्टिकुलर इंसान के हिसाब से जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से उस कैरेक्टर को पकड़ में लिया जाता है। तो व्हेनेवर एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट, ऑडिशन स्क्रिप्ट और कैरेक्टर ब्रीफ मिल रहा है अलोंग विद मे बी सम सिनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी, तो मेनली ये समझ पाना कि आपके पास जो भी कंटेंट आ रहा है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे डिकोड करना है, एंड उस हिसाब से कैरेक्टर को कैसे समझना है, कैरेक्टर को अपने हिसाब से कैसे अपना बनाना है, मेनली लाइंस कैसे याद करनी है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लाइंस याद करके, एंड देन द मेन part of the audition is being at the audition and taking directions. So jo bhi basically the casting director or the casting associate or assistant, the person who's taking your audition of course will have an idea of director ko kya chahiye,
और एग्जैक्टली स्टोरी क्या है, प्रॉबेबली उनके पास आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, एक्टर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द स्टोरी एंड द कैरेक्टर एज सच एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन जो कैरेक्टर्स हैं सीन में। तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से या फीडबैक के हिसाब से ऑडिशन को कैसे बेटर बनाना है विद कॉन्सिक्वेंट टेक्स, आई थिंक दैट इज व्हाट द होल प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग इज अबाउट। और अगर उस चीज को ऑफ कोर्स जिस एनर्जी से आप एंटर कर रहे हो, जिस माइंडसेट से आप एंटर कर रहे हो, उसको पॉजिटिव कैसे बनाना, बिकॉज दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो आई थिंक दिस ये हम अचीव करना चाहते हैं इन दीज 4 days. Yeah, this is great, Saloni. So, अगर हम कहते हैं कि ऐसा वर्कशॉप करने के बाद, जैसे गौतम ने बताया कि द रिजल्ट विल बी, यू विल बी कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग हर बार जब आपके सामने एक रोल आता है, एक स्क्रिप्ट आता है, आप उसको डील कैसे करें। वेरियस टाइम्स फिल्मों की जगह पे यू ऑल्सो गेट स्क्रिप्ट्स फॉर डूइंग एड्स, scripts for doing smaller roles in smaller films. Will they be able to use it, this workshop, सिर्फ वो फिल्मों के लिए, क्या हर किसी तरह का जो ऑडिशन है या उनको एक टेस्ट देना है उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं? Will this work for across? I think it will be more film and web centric, and because TV serials का performance थोड़ा अलग होता है, heightened होती है TV serials की performance, so which will not help, I think, for anyone trying to break into soap operas or something like that. Realistic performances के लिए है basically ये workshop, which could, अगर एक कोई TV show है जिसमें realistic performances हो तो अलग बात है, but अगर मैं बात करूँ conventional TV जो आप associate करते हो is with सास बहू shows or something like that, that is a very heightened performance. वो बहुत अलग है फिल्म के performance से. But other than that, any place where realistic performances are required, this is the workshop for that. Interesting. Saloni, you want to add something? Yeah, that definitely is the case, of course, because ads की acting भी मान लो, because see, with ads you're basically selling a product, so you need a very niche, एक niche kind of performance चाहिए होती है उसके लिए, which is very typical. At the same time, TV shows के लिए भी there is a lot of वो एक OTT space में आपको performance करनी होती है, and the cameras are different and the format is different. तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स डिफर करती है, बट वन थिंग आई डेफिनेटली थिंक कि हेल्पफुल होगी टू एनी एंड एवरी एक्टर वुड बी कि किस तरीके से और किस एनर्जी से आप किसी भी जॉब को अप्रोच कर रहे हो। एंड आई से जॉब बिकॉज गौतम सर ऑफ कोर्स फॉर्मली बिलीव्स एंड हमेशा बोलते हैं कि किसी भी ऑडिशन को अप्रोच करना चाहिए जैसे आपको जॉब ऑलरेडी मिल गया। तो वो एनर्जी अगर आप हर ऑडिशन में ला पाओ, बी इट अ टीवी एड, वेब शो, फिल्म ऑडिशन, व्हाटएवर बी द केस, शॉर्ट फिल्म, सो अगर उस एनर्जी से आप किसी भी तरीके के ऑडिशन को अप्रोच कर पा रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक यू हैव अ स्टेप अप। चाहे आप नए एक्टर हो, एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो, जो भी हो, बेसिकली उस सिनिसिज्म को, उस नेगेटिविटी को कट करने का या एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली पोस्ट कोविड, बिकॉज बहुत सारी नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, एक्चुअली नेशन वाइड इट वाज अ वेरी बैड फेज फॉर ऑल ऑफ अस। वो एक नेगेटिविटी हटा के एंड उस पॉजिटिव एनर्जी से जब किसी भी तरीके के ऑडिशन को अप्रोच अगर कर पाओ तो देन आई मीन आई थिंक इट्स हाफ द बैटल वन। तो वो चाहे जो भी फॉर्मेट हो, आई डोंट थिंक वो आधा पड़ाव आपने पार कर लिया तो उसके बाद देन ऑफ कोर्स और सारी टेक्निक्स अलग होती है और सारे फॉर्मेट्स के लिए एक्टिंग अलग होती है, बट एटलीस्ट टिल दैट पॉइंट इज समथिंग दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व इन द वर्कशॉप। So we have some questions in the chat. अगर आप में से भी किसी के पास questions हैं, आप लोग chat पे डाल सकते हैं. I will take it up or I can pin you and you can ask the questions. But I have just 2 more questions before we can move quickly to the audience questions. आपने बहुत अच्छे से बताया, गौतम, आपने बताया कि actually this will help for realistic film acting.
एंड काफी लोग अपने आप को उस एरिया में बिल्ड करना चाहते हैं बिकॉज द फॉर्मेट हैज चेंज्ड. अगर आप देखें, नेटफ्लिक्स देखें, प्राइम देखें, इवन इफ यू टेक फीचर फिल्म्स, सब में जैसे आप एनी वेब सीरीज हो या इवन इफ इट इज अ फीचर फिल्म, रियलिज्म की बात की जाती है. और रियलिज्म को अप्रोच करना इज अ फॉर्मेट जो आई डोंट नो अभी एक्टिवली सिखाया जाएगी. सो मेनी पीपल हैव गॉन थ्रू वर्कशॉप 2 साल पहले, 3 साल पहले, इस साल. बट रियलिज्म का जो अप्रोच है, क्या उसको लेके बात की जाएगी कि एक स्क्रिप्ट है, आपको उसको दिया गया है, और एंड आई थिंक स्क्रिप्ट वर्क है, राइट? यू विल हैव स्क्रिप्ट वर्क एज पार्ट ऑफ योर वर्कशॉप. Sorry, Gautam, we can't hear you. As in the audio just went. Can you just repeat? हाँ, of course स्क्रिप्ट पे काम होगा. उस स्क्रिप्ट को कैसे अप्रोच करना है वो डिस्कस किया जाएगा. हाउ टू bring truth to the character. You know, finally what you want to see on screen is the truth, right? We are recreating life. हम जिंदगी को स्क्रीन पे रिक्रिएट कर रहे हैं. तो उसकी जो सच्चाई है वो कैमरा के सामने लाना. So the key will always be कि bring truth to the screen basically. The more authentic आपका परफॉर्मेंस हो, the more real आपका परफॉर्मेंस हो, उतना वो ट्रांसलेट होगा to the audience, to the soul of the audience. That is the whole purpose of acting, is to reach out to that person in the cinema hall who's sitting and watching you, to reach their heart, right? Right. So that truth of a character, of a scene, of a performance, वो purpose है basically. Interesting. और वो ऑडिशन में क्रैक किया तो बहुत ग्रेट होता. Right. And to build this balance, यही शायद मेन टेक्निक होगा आपका जो रियलिटी का. That balance is going to be what you'll have to build. So I have a question now for Saloni. Saloni, अगर हमारे पास freshers हैं जिन्होंने एक्टिंग करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का एक्टिंग का शुरुआत करना चाहते हैं, can they join this workshop? Because there are lots of freshers who have written to us. They don't have any workshop, but they are very, very interested. So can they start with this? So by freshers, you mean people who don't have screen acting experience but have done theater before? Is that it? I'm Or- saying they have probably, I don't have details, but I think they are saying that they have acted in maybe theater or maybe in their school plays or in colleges. किया है, लोगों ने सराहा है कि आप अच्छा करते हो, आप इसको प्रोफेशनली क्यों नहीं लेते हो, या उनके दिल में है कि मैं काफी टाइम से मैं करना चाहता हूँ, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. Can this be one of these places where they sit and observe and participate? See, I think एक मेन चीज है जो गौतम सर भी हमेशा कहते हैं, ये ऑडिशन स्पेसिफिक वर्कशॉप है. ओके, एक्टिंग सिखाना इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, जिसके लिए एक्टिंग वर्कशॉप्स एग्जिस्ट करती हैं. बट ऑडिशन वर्कशॉप एक स्पेसिफिक चीज है जो हम कंडक्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि कोई एक्टर है जिसने पहले थिएटर किया है उसको वो एक्टिंग सीख नहीं सकता, या नेचुरल टैलेंट डजंट एग्जिस्ट. Okay, we actually personally have seen a lot of times kids, even kids and actors who have not done anything before actually turn out to be very naturally talented and give certain performances which really surprise us. तो ऐसा नहीं है कि फ्रेश टैलेंट एक्टिंग नहीं कर सकता या ये वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकता, बट हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि ये एक्टिंग सिखाने वाली वर्कशॉप स्पेसिफिकली नहीं है, ये स्पेसिफिकली एक ऑडिशन वर्कशॉप है. तो फ्रॉम अ कास्टिंग डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डायरेक्टर्स विजन पॉइंट ऑफ व्यू, हम उस तरीके से एक एक्टर को हेल्प करेंगे, ना कि हम एक्टिंग टेक्निक्स में डेल्व करके एक्टिंग सिखाएंगे. यू गेट मी? तो दैट्स व्हाई मेनली एक कास्टिंग एंड ऑडिशन वर्कशॉप का नाम लिया है हमने इसको, which again will be very beneficial to any actor who attends, because Gautam sir has so much experience and he's mainly the original casting director and has had the the experience with the best directors in the industry currently and in the past 20 years. So किसी भी डायरेक्टर का एंड बड़े बड़े डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझना एंड ऑडिशन कैसे देना,
वो मेन पॉइंट होगा वर्कशॉप का, ना कि एक्टिंग सिखाना. You're muted. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये इन 4 दिनों में हम एक्टिंग को अप्रोच नहीं करेंगे. सो अगर आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं समझना कि अगर मुझे एक्ट करना है और अगर कोई ऑडिशन आता है मेरे पास, या मैं अपनी करियर की जर्नी शुरू करना चाहता हूँ और मेरा फर्स्ट ऑडिशन में देना चाहता हूँ, तो मैं उसको कैसे अप्रोच करूँ. आपके एक टैलेंट को सीखने के बाद आप फिर उसको डेफिनेटली यहाँ पर पूछ सकते हैं इसको अप्लाई कैसे करें. तो थोड़ा सा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, उसको अच्छे से ब्रश अप करके उसको प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ा वर्कशॉप रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर आप काफी जगहों पे छोटे छोटे वर्कशॉप्स ले चुके हैं, या आप एनएसडी में पढ़ चुके हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं, एंड आपने काफी टाइम से काम भी किया है, एंड नाउ यू वांट टू नो अब अगला, मैं कॉन्स्टेंटली, मैं बॉम्बे में नहीं हूँ पर मैं बॉम्बे के साथ जुड़ा रहा हूँ, मैं इन अपॉर्चुनिटीज के साथ जुड़ा रहा हूँ, तो कैसे हो. ये अगर आपके क्वेश्चंस हैं, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म. ऑल्सो द रीजन इज, एक रिक्रूटर, एक जो सारे एक्टर्स के साथ, अक्रॉस इंडिया के एक्टर्स के साथ काम करते हैं, वो आ रहे हैं. तो दैट पर्सन विल ऑल्सो बी लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी टैलेंट इन Delhi. So if you're in Delhi, please don't travel to Delhi for this. I don't think so. You need to do that. If you want to, more than welcome. But if you're based out of Delhi, that is one of the best reasons for you to join. ये opportunity ना छोड़े. आप दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, फरीदाबाद, नोएडा, इसलिए हमने वसंत कुंज ऐसे लोकेशन को लिया है जो सैटेलाइट सिटी, सैटेलाइट लोकेशन से भी पास पड़ेगा. बाय मेट्रो स्टेशन से भी वो बहुत पास है. So it is very well connected as a location. Don't let this opportunity go by. मैंने आपके चैट पे, अगर आप देखें चैट पे मैंने एक लिंक डाल दिया है, जिसको अगर आप देखें तो उसमें सारी डिटेल्स, डेट्स, टाइमिंग, फीस, जो आपकी सारी क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ इसी पे डाल दिया गया है. आई एम गोइंग टू पेस्ट इट अगेन, सो यू कैन लुक एट दैट एंड रजिस्टर. 20 लोगों की पूछा गया, यहाँ पर 20 लोगों का बैच क्यों बनाया गया है. So, or why are we keeping it as a 20 to 25 people batch? Gautam, अगर आप इसके बारे में बताएं, why not go 50? Why not make it a larger batch? Why cap it in 20, maximum 25? Because we can spend more time with each student. एक स्टूडेंट के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, उनको जितना नॉलेज बांट सकते हैं बांटे, और एक प्रीमियम टाइम स्पेंड करना है मुझे एक्टर्स के साथ, जो 20 लोग या 22 लोग के साथ. 50, 60, 70 होंगे तो इट विल गेट लॉस्ट समवेयर एंड इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिंग, बिकॉज 50-60 लोग के साथ देन इट हैज टू बी अ one-way workshop then, where I just speak and people just listen to it and get whatever they can. Physically, it's very difficult to do for 50-60. My individual attention will be then totally divided. मतलब फिर आपको मेरे साथ बहुत कम टाइम मिलेगा. इधर क्या है कि you can pick my brains, आप मुझे 10 सवाल पूछो, मैं हर एक को अटेंड करूंगा. I'll give priority to everybody. With 40-50, it will be very difficult. It will be very difficult. So ये एक one-on-one approach हो जाएगा, literally one-on-one approach, so that 4 दिनों में ये 20 से लेके 22 बच्चे जितने भी हम फाइनली कैप करते हैं, that will, you can assure कि उन सबको उन 4 दिनों में अपना जो हुनर है वो उसके ऊपर काम करना, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस हो सके, जैसे आज की डेट पे अगर मैं थिएटर पे काम कर रहा हूँ, कैमरा टेक्निक पे मैं सर कैसे काम कर सकता हूँ, और जैसे सलोनी जी, आप जब अपने कैंडिडेट्स को देखते हैं तो आप उसमें क्या ढूंढते हैं, ये जो उनके रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं वो 1 by 1 आंसर करना, सबके मतलब दिल से जितने भी उनके डाउट्स हैं उनको एड्रेस कर पाना, ये मेन अटेम्प्ट रहेगा आउटसाइड ऑफ इवन अ लार्ज लेवल ट्रेनिंग. एम आई राइट? Definitely. ग्रेट. एंड यहाँ पर काफी लोगों ने पूछा है कि अगर उन्होंने कोई वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप ली है, मेनी पीपल हैव सेड कि हमने एक एक्टिंग वर्कशॉप लिया है, तो उस वर्कशॉप में
और इस वर्कशॉप में एक्टिंग को छोड़ के अलग से हम क्या सीख सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिंग वर्कशॉप एंड दिस वर्कशॉप? एक्टिंग वर्कशॉप में तो आप एक्टिंग सीख रहे हो, आप क्राफ्ट सीख रहे हो, या हम आपको ऑडिशन सिखा रहे हैं कि एक अच्छा ऑडिशन कैसे देना है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों वर्कशॉप के बीच में। हाँ, बिकॉज सी इवन इफ किसी ने एक्टिंग वर्कशॉप कर रखी है या फिर बेसिक आइडिया है या थिएटर कर रखा है, दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू, उनका खुद का एक क्राफ्ट होगा ऑलरेडी, बट ईच दैट्स व्हाई द 20 बैच आल्सो सबका इंडिविजुअल क्राफ्ट कैसे चैनलाइज करके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अप्रोच करना एंड सही ऑडिशन देना, दैट मतलब वो आई थिंक वो स्टेप 2 होता है, तो उस पे फोकस करना इज द पॉइंट ऑफ द वर्कशॉप, दैट्स द मेन डिफरेंस। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास कुछ ना कुछ बेसिक वर्कशॉप एक्टिंग अगर बेसिस रहेगा उसके ऊपर काम करके बिल्ड करना, दिस विल बी द वेरी नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। एंड जो ऑडिशंस होते हैं, क्या ऑडिशंस इन पर्सन भी होते हैं आज के डेट पे? यस। तो क्या इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के बाद वो आपके पास से अगर ऑडिशंस हैं तो हाउ विल दे कंटिन्यू देयर जर्नी विद गौतम किशन चंदानी कास्टिंग टीम? इनकी जर्नी इस वर्कशॉप के बाद कैसे कंटिन्यू होगी? See, as long as they are based in Delhi, we will also try and guide people in this workshop to कि आप एक अच्छा सेल्फ टेप कैसे दें। I think which is a very key important aspect आज की टाइम में, कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे देना है। I think we will spend some time on that also. I think it is very key aspect of ये वर्कशॉप का, कि वहाँ जहाँ पे भी आप हो, दिल्ली में हो या चंडीगढ़ में हो या दुबई में हो, किधर भी हो, कि आप एक अच्छा सेल्फ टेप कैसे भेजिए, उससे भी हम एक छोटा सेशन रखेंगे। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन स्कोर अ ग्रेट ऑडिशन घर पे बैठे एंड यू नो आपको वो पार्ट मिल जाए। And how does the industry function in terms of OTT roles and feature film roles? इनके फर्क क्या है? ये processes भी बताए जाएंगे, I'm guessing. या whatever questions are there, वो हर एक एक्टर का एक अलग क्वेरी होता है, वो हम सब एड्रेस करेंगे। आई विल आंसर एवरीबडीज क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। मुझे जितनी समझ है उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि ये मेरा ओपिनियन है अबाउट ये चीज के बारे में, जो भी उनकी क्वेरीज है। So each day we'll definitely have a Q&A as well, because each and every actor, like sir said, has their own questions, and mainly बहुत ट्रबल शूटिंग की जरूरत है, बिकॉज काफी मतलब चाहे जो भी कह लो, इन इंडिया द फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी स्कैटर्ड when it comes to auditioning and how many casting directors exist, किसको प्रोफाइल भेजनी है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम से काफी कुछ पता चल जाता है, बट तुम कितना ही रीच आउट कर लोगे और कितना ही तुम कौन से ऑडिशन तुम्हें मिल जाएंगे और कैसे कर पाओगे। तो इतने सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक ईच डे द Q&A will help, और एंड ऑफ कोर्स वो सीन वर्क जो हम करने वाले हैं, each and every actor who attends the workshop, I think everybody talks about verbally about ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, but actually putting it into practice, we'll be giving scenes to each actor, and उस हिसाब से हम उस सीन पे काम करेंगे, रिहर्सल करेंगे, एंड देन इवेंचुअली एक लाइव ऑडिशन परफॉर्मेंस भी होगी, एंड देयर विल बी as in we'll record it also and we'll work on feedback and try and उस ऑडिशन को बेटर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली it'll be like a lab trial, you know, कि वहाँ पे सामने सामने ऑडिशन करके एक लाइव प्रैक्टिस राउंड बोल सकते हैं उसको, एंड देन रिकॉर्डिंग द ऑडिशन एंड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ऐसे शूट करना है और ऐसे सबसे प्रेजेंटेबल होता है ऑडिशन भेजना टू एनी कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर। तो आई थिंक बहुत सारी क्वेरीज ऐसे क्लैरिफाई हो जाएंगी, so that by the end of the workshop they are absolutely ready to be able to give good quality self tests or live auditions.
सो बेसिकली कि आपकी बैकग्राउंड एंड आपका प्रॉप क्या होना चाहिए, आप अपने आप को ऑब्जेक्टिवली कैसे तैयार करें, और इन इन कैरेक्टर इन प्रेपरेशन कैसे तैयार करें, वो सारे जो क्वेश्चन है कि क्या मुझे इसके लिए कॉस्ट्यूम पहनना है, नहीं पहनना है, शुड आई हैव मेकअप, नॉट मेकअप, मेरा बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्या कैमरा ऐसे पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, या जब हम ऑडिशन दे रहे हैं कि क्यूज देने वाला कौन है, सेल्फ को क्यूज कैसे, देर आर वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस आल्सो जो पूछे जाते हैं, वो सारे इज एक्चुअली गोइंग टू बी एड्रेस्ड. एंड वन मोर क्वेश्चन आई हैव फ्रॉम, आई एम नॉट नेमिंग बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, मैं एक के बाद एक क्वेश्चन सिर्फ ले रही हूँ. क्वेश्चन है कि अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स कर रहा हूँ, मुझे छोटे छोटे रोल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, पर मुझे की रोल पकड़ना है. मैं कभी कभार एक की रोल के लिए, जैसे कहते हैं इट इज फॉर अ मेन लीड, कहा जाता है इट इज फॉर अ प्राइमरी एक्टर लीड, और उस ऑडिशन को मैं देना चाहता हूँ, पर मुझे मोस्टली छोटे रोल्स के लिए मिल जाता है. एंड द क्वेश्चन इज कि मुझे उन की रोल्स के लिए नहीं मिलता है. what am I doing wrong, what can I change, what is it that I am missing, and why do I feel this is the key role which I will be selected. जैसे वो क्वेश्चंस होता है, मुझे वो थोड़ा ऊपर जाना है, मैं मिड सेगमेंट से हटके थोड़ा ऊपर जाना चाहता हूँ. वो नेविगेशन जो है उसके बारे में भी बातें की जाएंगी. Yeah, of course. That is a part of an actor's journey. आप पंकज त्रिपाठी को देखिए या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, अभिषेक बैनर्जी was my assistant and now is a known actor. वो उन्हें सबने, अभिषेक ने एक छोटा टर्शरी पार्ट एक चोर का किया था नो वन किल्ड जेसिका में, जो 2010 में रिलीज हुई थी, और उधर से अब 3-2 में और जो भी आप देख रहे हो, तो इट्स अ जर्नी जो हर एक्टर को लेना पड़ता है, फ्रॉम स्मॉल पार्ट टू दैट लीड पार्ट. इट्स अ जर्नी दैट टेक्स टाइम. आप बस अपना क्राफ्ट इंप्रूव करते जाइए, आप अपने आप पे काम करिए, आपके क्राफ्ट पे काम करिए, एंड आई एम श्योर वन डे यू विल गेट दैट लीड पार्ट. Nawazuddin Siddiqui has done NSD for 3-year or 4-year course of NSD after graduation, and in the late 90s वो पास हुए. उसके बाद उन्होंने पता नहीं कितने साल किया, टिल 2003 हमारे साथ ब्लैक फ्राइडे में शूट किया. उसके पहले आई थिंक मुन्ना भाई, MBBS और 2-3 और फिल्मों में 1-1 सीन के रोल थे. Munna Bhai mein he was a pickpocket or something, if I remember correct. Correct. 2003 he had a secondary part in Black Friday. उसके बाद उनका शुरू हुआ till 2009 he got Kahani, where he was like Vidya Balan के बाद the kind of the main character or something, and then 2012 is when he got Vasepur and became like a known. So it's a journey. इट्स अ जर्नी. हर एक्टर को ये जर्नी पे जाना है. वो छोटे 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 पार्ट करते करते फिर सेकेंडरी से करके फिर प्राइमरी पे आ जाते हैं, और वो जर्नी में आपको अपने आप पे काम करते रहना चाहिए. एंड इवेंचुअली नो कास्टिंग डायरेक्टर, नो डायरेक्टर कैन स्टॉप अ गुड एक्टर. इफ द एक्टर इज गुड, अगर एक्टर ने अपने आप पे काम किया है, सालों साल किया है, घुसा रहा है टेक्निक में, उसको प्राइमरी मिलेगा ही. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. इट कुड बी इन अ स्मॉल फिल्म, इट कुड बी इन अ मीडियम फिल्म, इट कुड बी इन अ बिग फिल्म. सुपर, दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक फैटिग इससे भी आ जाती है कि यार मैं हमेशा सिलेक्ट होता हूँ या हमेशा सिलेक्ट होती हूँ, पर हमेशा ये स्मॉल रोल, एक मिनट का. तो ये एक्टर को ये समझना चाहिए कि वो मैराथन भागने आया, 100 मीटर स्प्रिंट के लिए नहीं आया. ये लॉन्ग जर्नी है जिसमें आपको आपकी विश होनी चाहिए कि आप मरते दम तक एक्टिंग करें, ना कि मैं 10 साल दूंगा, 5 साल दूंगा या 6 साल दूंगी और फिर आई विल गेट ऑन विथ माई अदर लाइफ एंड स्टॉप एक्टिंग. इट इज फॉर पीपल जिनको जिंदगी भर वही काम कर, तब जाके आप धीरे 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 यू विल ग्रो एज एन एक्टर.
क्योंकि बहुत ही वास्ट फील्ड है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड क्राफ्ट, इसके लिए टाइम लगता है। सुपर, दिस इज वेरी हेल्पफुल। सो अगर आप अपने एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत भी करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि जब शुरुआत हो तो आपके पास आपको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी आए तो आपको कैसे टैकल करना है, दिस वर्कशॉप इज अबाउट व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, हाउ डू यू अटेम्प्ट दैट अपॉर्चुनिटी मोस्टली। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप इसको दिमाग में रखें, जैसे गौतम सर और सलोनी जी ने बताया कि दिस इज नॉट एन एक्टिंग, मतलब एक्टिंग कैसे करनी है, आप अपने आप को कैसे बिल्ड करें, 4 दिनों में ये नहीं सिखाया जाएगा। अगर आपने एक्टिंग की है, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपना पहला ऑडिशन देना चाहते हैं, आप अपने पहले सेल्फ टेप को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इट्स अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट। अगर आप दिल्ली में नहीं हैं और अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, इन 4 दिनों के लिए दिल्ली आ सकते हैं, आ जाइए, एब्सोल्युटली मोस्ट वेलकम। द रीजन बिकॉज अगर आपको लगता है कि आई नो दैट मेरे पास 4-5 अपॉर्चुनिटीज है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या कंफ्यूज हो रही हूँ और एक स्ट्रगल चल रहा है कि शुरुआत करूं कि नहीं करूं, तो कम, लर्न एंड देन गो। डेफिनेटली दिस इज वन थिंग विच विल हेल्प यू। हमने ये देखा है क्योंकि गौतम सर काफी सारे वर्कशॉप्स बॉम्बे में कर चुके हैं। मेनी ऑफ यू आर आस्किंग व्हेन विल बी अ वर्कशॉप इन बॉम्बे, देयर हैव बीन मेनी वर्कशॉप्स ओवर years that Gautam has taken as part of it, and they have been extremely in-depth acting workshops. Those were not audition workshops, they were acting workshops that have happened in the past in Bombay. But there has been a demand from many actors in Delhi कि हम लोग ऑडिशन आता है, क्योंकि हम बॉम्बे में नहीं है, हम क्रैक नहीं कर पाते हैं। ये ज्योग्राफी का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लोकेशन का इशू नहीं है, ये एक अटेम्प्ट का इशू है, एक स्ट्रक्चर का, एक प्रोसेस का, एक मेथड का इशू है। वो मेथड, वो स्ट्रक्चर, वो प्रोसेस समझाने, बताने, सिखाने आपको गौतम एंड सलोनी दिल्ली आ रहे हैं फ्रॉम द 19th टिल द 22nd of October। आपको मैं वापस से रिपीट कर दूं, 10th of October is the last date to register, or if we have the batch full. So any kind of audition tips, any kind of audition questions, ये जो सारी बातें हो रही हैं, I know there are lots of questions. This particular discussion is not to talk about audition tips and everything, because उसके लिए हम और sessions करेंगे। ये वाला is specific to members who are in Delhi and around, who would like to be a part of this kind of a opportunity, उसके लिए किया जा रहा है। If there are any further questions, I'm happy to take them. In case you are in Delhi, it is better that you ask your question today, ताकि हम आपको बता सके, ओके वी हैव समवन हु इज आस्किंग, मैं दिल्ली में हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं ऑडिशन सीखना चाहता हूँ, पर मैं ऑलरेडी एक प्रोफेशनल लाइफ भी है उनकी, और एक्टिंग वो साथ में कर रहे हैं बिकॉज दैट इज देयर, दे हैव अ लाइवलीहुड फ्रॉम दी प्रोफेशनल साइड। तो ये बैलेंस मेंटेन करके ये करियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या उसके बारे में बात की जाएगी, कैन वी गेट सम मेंटरिंग and some recommendation on that as part of the workshop? Yeah, of course. Whatever I can share, I will. I have seen actors who have had day jobs और उन्होंने eventually full time कर लिया। उसको टाइम लगता है, बट जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी ये एक्टर को, अगर वो अपने क्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं और वो उनके ऑडिशन बेटर होते जाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि वो डे जॉब छोड़ के ये फुल टाइम करें। एंड मोस्टली एक्टर्स को दिल्ली छोड़ के बॉम्बे रिलोकेट करने की जरूरत पड़ेगी एज वी गो अलोंग। इज इट दैट बॉम्बे स्टिल द हब, or do you see many actors working out of Bombay in any city? In frankly immediate next 5-7 years 10 years में I think eventually अगर आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए तो बेटर होगा, unless you become such a fine actor, जैसे आप आदिल हुसैन हैं और 2-3 एक्टर जो दिल्ली के हैं जो अभी भी वहां रहते हैं, बट जिन्होंने इतना अपने क्राफ्ट पे काम किया है कि प्रोड्यूसर इज रेडी टू पे फॉर देयर ट्रैवल एंड होटल स्टे एंड एवरीथिंग। टिल देन, till you become of that level or you become a theater thespian and a very good known actor and people want to cast you, तब तक आप आपकी जगह पे रह सकते हो। बट
till then there are possibilities that you will have to move to Bombay eventually. Usually that is the case that I have seen. राइट, ऑफ कोर्स इट मेक सेंस कि अगर आप ऑडिशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक कॉस्ट ऑफ ट्रैवल हमेशा डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस अपने दिमाग में रखेंगे. वो होता है. And right now film industry is going through a tough period because किसको समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या बनाना है. तो फिल्में और वेब शोज उतनी नहीं बन रही जितनी पहले बन रही थी ड्यूरिंग द कोविड पीक पीरियड. अब कम बन रही है. तो फिर वही होता है कि जब बजट कम हो जाते हैं, सब हो जाता है, फिर वो होता है कि यार should the production spend on too much on an actor from Delhi till that audition is so incredible that the director says कि मुझे यही actor चाहिए. Finally, it's up to how good an actor you are. If you are a special actor, people will pay. Super. But there are, like now, another trend that I've noticed is one actor I had cast in No One Killed Jessica in a very small part, who's now doing a lot of important characters in most of the last few years में. वो Delhi based actor है, and he has taken a place on the outskirts of Bombay, and he rents that place, and he says to the productions कि आपको मेरा रहने का और इसका भरने की जरूरत भी नहीं. वो भी बहुत common हो रहा है अभी, where actors from Delhi or any other cities who are getting a lot of work are cracking auditions, getting this, but the production has said कि हम आपका ये सब नहीं भर सकेंगे, मुश्किल होगा. वो actors ने बॉम्बे में जगह ली है कहाँ पे, and then and where there is the rent is minimal. So this actor I know stays just on the outskirts of Bombay, मीरा रोड या कहाँ पे. तो उन्होंने एक 1 room kitchen लेके रखा था. जब भी उनका शूट होता है वो वहां जाके रहते हैं. तो ये भी मैंने देखा है in the last 5 years, because a lot of Delhi actors have moved. जैसे ही आपको काफी काम मिलने लगता है, आप खुद ही शिफ्ट हो जाओगे बॉम्बे. आई एम टेलिंग. राइट. एंड अगर हम पूछें कि अगर यही जो लोग हैं जिन्होंने एक बॉम्बे में भी एक बेस बना लिया है, और एंड आई नो फॉर अ फैक्ट राजेश तेलांग जी, वी हैड मेट हिम, ही स्टेज इन दिल्ली. वो दिल्ली में ही रहते हैं और उनका एक रेजिडेंस है जहां पर वो शटल करते रहते हैं फॉर बॉम्बे. सो बेसिकली इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली. और वो कहते थे कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही चलाई है, मैं जब भी काम होता था मैं चला जाता था 2-3 हफ्ते, कभी कभार किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ. और आज के डेट में मैंने घर ले लिया है, मैं वहां पर रहता हूँ, बट आई प्रेफर टू बी विद माई फैमिली एंड एवरीवन इन दिल्ली. सो ये जो अजम्पशन है कि दिल्ली में है तो फिल्मों में क्रैक करना या फिल्म करना या अपॉर्चुनिटी हमें कभी देखेंगे नहीं, वो हमें कंसिडर ही नहीं करेंगे, आई थिंक लार्जली गलत है. एंड सलोनी, इफ यू कैन ऐड, आप काफी लोगों को के ऑडिशंस देखते हैं, जब आप कोई एक रोल डालते हैं तो काफी लोग शायद दिल्ली से या किसी और शहरों से आपको अप्लाई करते हैं, तो आप तब क्या देखते हैं कि इनको लोकेशन वाइज आप सॉर्टिंग करेंगे या पहले टैलेंट वाइज सॉर्ट करते हैं? See, of course, production पे largely dependent होता है ये, as to whether they are willing to fund the travel and accommodation of an actor जो वहाँ base नहीं है जहाँ shoot होने वाला. It's different if the shoot is happening in Delhi, then nothing like it. But अगर मुंबई में shoot है और production specifically बोलता है कि मुंबई से ही actor चाहिए, तो then of course हमारा primary filtering उसी से हो जाता है. Unless some actor आगे से says that I also have kind of a place to stay in Bombay and I'll come on my own. So that's different. And those are exceptions. But the rule at that point is कि हम पहले, of course, location wise sort करते हैं. Right. Okay. So it is important. So is it important for them to say I am in Delhi but can travel? Then they can say that. Yeah, if they are willing to do that on their own expense, then yes. Okay, great. Because always जो भी हम requirement डालते हैं उसमें हम लिखते भी हैं कि अगर हमें
if we are open to actors across India, हम वो भी लिखते हैं. अगर सिर्फ मुंबई बेस्ड चाहिए वो भी लिखते हैं. बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि सिर्फ दिल्ली बेस्ड चाहिए तो हम वो भी लिखते हैं. तो we always specify location wise. तो उस हिसाब से if there is an actor जो जिसके पास दिल्ली में भी बेस है या फिर उनका होम टाउन दिल्ली है बट बॉम्बे में रहते हैं, तो ऑल दैट रियली ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव है, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से यस दे शुड डेफिनेटली स्पेसिफाई. Okay, great. Now, is there anything else that you would like to add? If you have questions, please type it on the chat so that we can ask the question on your behalf. So that will be good in case, and it has to be specific to the workshop जो दिल्ली में आ रहा है. If there's any general questions कि मैं अपने acting पे कैसे काम करूं, या मुझे अगर कोई input दिया गया है कि ऐसे act करो तो उसको कैसे करें, those are going to be difficult. जैसे मंजू ने हाथ खड़ा किया, इनका क्वेश्चन है, should I accept TV serial role as a aspiring realistic actor or not? तो वो पूछना चाहते हैं कि if he should accept TV serial role. ये भी करना चाहिए. आपको एटलीस्ट टीवी करेंगे तो आपको मीडियम समझ आता है, आपको कैमरा समझ आता है, आपको लुक समझ आता है, आपको कंटिन्यूटी समझ आती है. नो वर्क इज बैड वर्क, राइट? हर काम अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि जब आप सिर्फ टीवी करोगे और अगर वो हाइटेंड वाली सास बहू वाली टीवी सीरियल करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो आप उस एक बबल में फंस जाते हो. अभी हमने खुफिया के लिए जो वामिका गब्बी ने रोल प्ले किया था, उसके लिए हमने बहुत सारे टीवी एक्ट्रेसेस को भी किया था जो आर टॉप एक्टर्स इन टीवी. एंड जब उनको इसके लिए ऑडिशन किया, वो नहीं कर पा रही थी, वो टीवी का परफॉर्मेंस तोड़ नहीं पा रही थी. अगर आपने इतनी सारी ट्रेनिंग ली है ना, तो उसमें आप फिर बहुत अच्छे ट्रेंड एक्टर, तो आपको पता चलेगा कि टीवी में ये जरूरत है और फिल्म में ये जरूरत है. आपको फिर वो स्विच ऑन स्विच ऑफ करने आना चाहिए. आपको टीवी को अनलर्न करना पड़ेगा टू कम टू सिनेमा, फिर सिनेमा को अनलर्न करना पड़ेगा टू कम टू टीवी. आपको वो करने आना चाहिए, जो कुछ लोगों ने अच्छा बैलेंस भी किया है, पर वो रेयर है. बट आप करो, काम करिए. स्टार्ट में टीवी भी मिलता है तो भी बहुत अच्छा है. डोंट से नो टू एनी वर्क टिल यू बिकम अ नेम. जब तक अगर आप रास्ते पे गए और आपको मॉब ने पकड़ लिया, धर लिया, फिर आप काम को ना बोलो. तब तक आपको जो काम मिल रहा है उसको पॉजिटिविटी से अप्रोच करके करिए. एनी वर्क इज गुड वर्क, बिकॉज इवन इफ अगर वो खराब टीवी सीरियल, आपको पता पड़ेगा कि क्या नहीं करना चाहिए. तो चाहत का एक क्वेश्चन है, चाहत अरोरा का, दैट सब कहते हैं कि अपने पे काम करो, आप अपने पे काम करो. तो ये क्वेश्चन का मतलब उनको नहीं समझ में आता है. क्या इस क्वेश्चन का आंसर उनको मिलेगा? अपने पे काम करो, इस क्राफ्ट पे काम करो. अलग अलग वर्कशॉप करिए, साल में 2 वर्कशॉप करिए, रिसर्च करिए कि कौन से अच्छे वर्कशॉप्स हैं, किताबें पढ़िए ऑन एक्टिंग, वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑन एक्टिंग, वर्क ऑन योरसेल्फ. दैट इज व्हाट इट मीन्स टू बिकम अ बेटर एक्टर, बिकॉज बहुत ही वास्ट क्राफ्ट है एक्टिंग. समझते समझते आपको डेकेड लग जाते हैं. And I think वो एक positive attitude and humility रखना, while I think that's what differentiates an actor from an actor. कि आप अगर अपने पे काम करने से का मतलब वो भी है कि you work on yourself and you work on your humility towards the craft too, because बहुत of course a big part of being an actor is also facing rejections. तो रिजेक्शन फेस करते करते हमने ऑफ कोर्स एंड सर ने तो बहुत देखा है दैट इट गेट्स टू यू एंड यू कैन हेल्प इट. एट द एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और होता है दैट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड रिजेक्शंस गेट टू यू, बट उसको किस तरीके से टैकल करना है एंड हाउ टू नॉट लेट दैट बिकम यू नो एन एस्पेक्ट ऑफ यू, द सिनिसिज्म जिसको बोलते हैं, वो नेगेटिविटी व्हेन इट गेट्स टू यू, इट यू नो kind of seeps into everything. तो वो avoid करके just concentrate on the craft, honing your craft, becoming a better actor and approaching everything with that वो एक humility and a kind of gratitude. I think that's what working on yourself really means.
Great. Actually, that is very elaborate and it helps to understand generally आप लोगों को ये करना चाहिए and actually you will learn a lot of these processes as part of this workshop. तो जब आप कह रहे हैं कि आप know how to work on yourself and जैसे गौतम ने बताया whether it is to read, whether it is to follow, whether it is even go to theaters and watch them. Working on yourself is also getting yourself to see more. All of this इसके बारे में और हाँ और सेशन हिंदी में होगा बिल्कुल वर्कशॉप हिंदी में है हिंदी ये वर्कशॉप मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है कि आपको वर्कशॉप समझ में आने वाला है 100% समझ में आने वाला है वर्कशॉप हिंदी में है और बहुत रिलैक्स्ड वर्कशॉप है कोई स्ट्रेस नहीं है इस वर्कशॉप में कोई ज्यादा बड़ी तैयारी नहीं है आप बस आप अगर आपने थोड़ा काम किया अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट दिस जर्नी currently we don't have any plans of any other city. अगर आप कोलकाता का पूछ रहे हैं क्या आप किसी और सिटी का पूछ रहे हैं अभी गौतम सर की अभी सिर्फ दिल्ली में ये वर्कशॉप हो रही है तो right now there are no plans currently in the near future to any other city. तो having said that I think this would be the last question which we take for today because 1 घंटा हो गया है we've been talking. The last question is कि अगर हम actors हैं और हमारे पास एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है जो हम भेजते हैं काफी बार लोग देखते हैं कि आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है या नहीं है उसके बेसिस पे लोग सिलेक्ट होते हैं रिजेक्ट होते हैं क्या ये सही है या और इट इज नॉट अ फैक्ट It is a very sad thing that is happening, this influencer casting, social media followers कितने हैं उसके हिसाब से हम definitely try करते to avoid it because we believe in who is the right person for the part. जो सबसे fit है इस character के लिए उसको cast करिए. And अब ये जो social media influencer casting हो भी रही है उसमें भी अब हो रहा है कि वो जो भी लोग कास्ट कर रहे हैं वैसे वो एक्टर सेट पे एक्सपोज हो रहा है कि वो उसको एक्टिंग नहीं आती है उसको सिर्फ वो अपना एक पार्ट जो प्ले करते हैं वो ही आता है उनको जो आपके स्क्रिप्ट का कैरेक्टर है अनलेस वो एग्जैक्टली मैच नहीं होता दे आर गेटिंग एक्सपोज सो आई एम होपिंग दैट ये ट्रेंड खत्म हो जाए बहुत जल्द बट आई डू नॉट सपोर्ट इट some lazy producers might be supporting it just to make things आसान हो जाए उनको कि उनको और पैसे मिल जाए या और विजिबिलिटी मिल जाए बट वो प्रोजेक्ट यूजुअली चलते नहीं unless that influencer is a good actor अगर वो इन्फ्लुएंसर एक अच्छा एक्टर भी है या अच्छी एक्टर है then you cannot blame them but otherwise you know for most good casting directors ये मैटर नहीं करता ओनली थिंग इज दैट द कास्टिंग डायरेक्टर फाइटिंग विद द प्रोड्यूसर और समथिंग लाइक दैट कि भाई लेट्स नॉट गो टू ये रूट में नहीं जाते यहाँ नहीं फंसते कोई इन्फ्लुएंसर टिकट्स नहीं बेचता हाँ ऐसा नहीं है कि आपने इन्फ्लुएंसर को कास्ट किया और यू नो 4-5 करोड़ की ओपनिंग मिलेगी आपको वो इन्फ्लुएंसर के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है ट्रू वो सेल फोन में जो आपका इम्पैक्ट है फॉर अ स्वाइप उसका जो इम्पैक्ट है उसको आप थिएटर टिकट से नहीं कर सकते उनको सेल फोन पे वो रोज दिख रहे हैं तो स्पेशली थिएटर में जाएंगे उनको देखने के लिए जब उनको वही चीज रोज मिल रही है कोई देयर इज नो पॉइंट अनलेस दैट एक्टर इज अ स्ट्रांग एक्टर देयर आर इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत अच्छे एक्टर्स भी है बट वो आप गिन सकते हो अपने दोनों हाथों से ट्रू एंड ये एक्चुअली एक वेरी ट्रू एक बबल है जो वेरी स्लोली वो एक्सपोज भी हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए बहुत खराब लगता है जब साला ये फॉलोअर्स के वजह इसकी कास्टिंग हो रही है ऑल दीज आर फ्रस्ट्रेशंस एक एक्टर फेस करता है और सैडली फेस करना पड़ता है बट वही सब फ्रस्ट्रेशन एंगर वो अपने परफॉर्मेंस में चैनलाइज करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे Great. Thank you so much for this. This has been very helpful. मैं honestly कह सकती हूँ कि आज का session has been very helpful. I'm very grateful to you, Gautam, as well as to Saloni for making time on a Sunday. And super excited to see you in Delhi. Details of this particular workshop हम आपको already डाल चुके हैं on the chat.
एज वेल एज आप सिनेइंफो का जो आपने इंस्टाग्राम से इंफॉर्मेशन लिया है, गौतम सर के इंस्टाग्राम पे और गौतम किशन चंदानी कास्टिंग के वेब इंस्टाग्राम पे, सब पे ये वर्कशॉप के बारे में बताया गया है. This is the first of its kind in Delhi. Don't miss this opportunity. And it is important for you to know that ऐसे वर्कशॉप्स को करने में काफी मेहनत जाती है. देखिए, हम गौतम को, सलोनी को बॉम्बे से लेके आ रहे हैं दिल्ली, वहां पर वो रहेंगे, ट्रैवल, स्टे, स्टूडियो, देयर इज एन एक्सपेंस. तो अगर आप जब फीस देखते हैं और कहते हैं तो बहुत महंगा लग रहा है यार, ये तो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप ये सोचिए कि अगर आपको बॉम्बे में आके वर्कशॉप सीखना होगा तो कितना खर्चा पड़ेगा. Do the math, you will see that this is turning out to be more affordable than moving to Bombay and then staying there and living there and then doing a workshop. It will be more affordable. That is why we are making this effort कि आप, हम एक नहीं 2 लोगों को ला रहे हैं. That it is Gautam and his team who's coming and there is a 4-day full. इसके अलावा भी काफी चीजें इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में ली जाएंगी. So if you are sincerely looking at it, it is not expensive, it is an investment. जैसे आप लोगों ने एजुकेशन में, काफी स्किल्स में, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया है, इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखें. I promise you, you will see the outcome of the investment once you have done the workshop. And this is also a great way to build relationship with a maestro, with a person who is very, very acclaimed in the industry, to give you that kind of feedback, to have that channel of dialogue open with him. So it is important you don't look at it from 4-day angle, 2-hour angle or 3-hour angle. You look at it from, मैं इस particular, जैसे गौतम ने कहा कि मैं मरते दम तक एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो आइए 100%. अब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उन सबको इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हम सॉल्व करेंगे. Thank you so much to everyone. Thank you Gautam, thank you Saloni. If you have anything, any last few words for all of us, just Gautam, if you can give us your last words, and Saloni, it'll be great. But thank you everyone for joining. Yes, Gautam, over to you. Yeah, forward, whoever comes to this workshop, जो भी आएगा इस वर्कशॉप में, they will become friends for life. And you know, मैं जितना मेरा नॉलेज है, ये 20 साल जो मैं इंडस्ट्री में मैंने बिताए हैं, वो सब आपको इम्पार्ट करूंगा, so that you gain something from the workshop and you become better at giving auditions. मेरी पूरी इच्छा वही है कि आप एक ऑडिशन का प्रोसेस अच्छी तरह समझ लें इसके बाद. Then it's going to be a lot of fun, guys. Whoever chooses to come for the workshop, बहुत मजा आएगा. And I think बहुत सारे actors से मैंने ये भी सुना है, be it बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, कि गौतम सर से सीखना है, गौतम सर से मिलना है. I think इन 4 दिनों में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, because it's going to be firstly it's going to be a lot of fun. एंड स्पेशली जिसको एक्टिंग पसंद है, ऑडिशन कैसे करना है वो सीखने का पैशन है, सही कैरेक्टर्स समझने का पैशन है, रोज रियाज कैसे करना है वो समझने की चाह है. आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट. एंड ऑफ कोर्स we'll meet, we'll have fun, we'll chill, everything. It's going to be very chill, it's going to be very relaxed, and it's going to be a lot of fun. So that I can guarantee. And of course, by the end, आपके पास एक show reel भी होगा, which will be a very good quality show reel जो आप worklings की तरह use कर पाएंगे. Because बहुत सारे actors ये भी पूछते हैं कि अगर हम fresh वो हमारे पास कोई screen work नहीं है या फिर कोई link नहीं है, जब लोग पूछते हैं कि link share करो, तो I think वो भी एक बहुत बड़ा advantage है कि गौतम सर approved एक audition आपके पास होगा या एक scene होगा जो आप और casting directors को बहुत अच्छे से भेज पाएंगे, which will showcase you in a much better way as an actor. So yeah, I'm really looking forward to meeting you guys, whoever joins the workshop. Thank you Saloni, and hope you feel better soon. आपका गला 19 तारीख तक ठीक हो जाए. I'm so sorry. प्रार्थना करते हैं ताकि अब चिल्ला चिल्ला के वर्कशॉप में बातें कर सके.
Thank you. So that's the hope, and let's have some fun. Let's actually learn something and make our careers. So all the best to everyone. Looking forward to seeing many of you. And thank you once again, Gautam. Thank you, Saloni. Excited about the workshop. Thank you so much. Right. Bye. Bye. Thank Bye. you. Thank you.